To close our day of interviews and talks, we have two very powerful, very influential people from their fields here today. We have a designer joining us, and we have a man who has taken Adrak, the tradition, really far, far beyond. So let me introduce them in. Yes, absolutely. One of the few best artisans of our country that we have. He has been honored by the state government, received National Excellency Certificate, honored by the Textile Minister of India, awarded by the Vice President of India, and he has brought the art of Adrak printing to its peak. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Ranamil Khatri. Namaste. And the other eminent guest that we have, she is brilliant at what she does. Her name is Sunita Burad, and since childhood, the fashioner dreamt of being a great designer, which she is, and never gave up. In 1991 in Calcutta, she launched a label, Studio Elegante, and did her first solo exhibition in 1992. She has also exhibited her clothes in countries like United Kingdom and USA. In 1996, she moved to Jaipur, the city, and the latter part of her career, her journey began. Here she considers herself fortunate, as her better half was the fourth generation into creating high-end customized bridal lehengas for the royal families, for the ones who didn't know that. And under the name Mangalmayi, and this paved the way for her zeal. So here she is. Let's welcome her, Sunita. It's an honor to have you here. Round of applause, please. Welcome, ma'am. Welcome, sir. Welcome. And now we'll play the AV for Sunita Burad. My store in 2012, as you mentioned. So I always had this dream to do something a little different. I'm already married to a family, there's a lot of tradition involved, and I just see a lot of embroideries and bright colors, saris and lehengas. But then I realized that an Indian modern woman would not wear a sari and lehenga all the time. She would need a different garment, a casual garment. So then I thought of a label of doing something different, where I could do something which is more casual and where I could cover all the aspects of India. And I have a store in Bapu Bazaar, and starting from like doing home and clothing, so we're just moving ahead every day. That's brilliant. The label is really beautiful. और सर आपकी जर्नी कैसी रही है? आपके परिवार में सब लोग अजरक का काम कर रहे थे, या आप जैसे बड़े हुए आपको लगा कि ये अजरक का जो प्रिंट है वो अभी मर रहा है, वेस्टर्न कल्चर इतना आ रहा है, तो मुझे ये रिवाइव करना है? आपकी सोच क्या रही है? जी धन्यवाद। मैं अजरक रंगाई छपाई के दुनिया में ही पैदा हुआ हूँ, इसी परिवार में पैदा हूँ जो लोग ये रंगाई छपाई करते थे जी। और हमारे फोर फादर्स और परिवार के लोग पारंपरिक रूप से गांव में बिकने वाला कपड़ा बनाते थे। और मैंने शुरुआत की, मुझे लोग मिले फैशन डिज़ाइनर, उनके साथ नया काम, नए डिज़ाइन डेवलप करने में
आनंद खूब आया, लेकिन शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा। ट्रेडिशनल डिज़ाइन अलग टाइप के होते थे, मॉडर्न अलग टाइप के होते थे, बट ऐसा लगता है अभी कि यदि मॉडर्न डिज़ाइनर नहीं मिले होते तो शायद ये काम बंद हो जाते। हम रंगाई छपाई करते हैं, लेकिन डिज़ाइनर उनके साथ काम करते हैं तो उनमें नया निखार ही आ जाता है, उसका दिखना लुक ही चेंज हो जाता है, भव्यता आ जाती है। तो अजरक और मॉडर्न स्टाइल में दोनों को साथ में मिल जा सकता है, यू कैन कंबाइन इट ऑल टुगेदर। जी हाँ, अजरक शब्द का अभिप्राय, मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ, सिंध से आए हुए लोग हैं हम, बाड़मेर में हैं, गुजरात में हैं। और अजरक शब्द का अर्थ अरबी भाषा में होता है नीला कपड़ा, नीले कपड़े से संबंधित, नील से डिप किया हुआ। उस टाइम में सारा सब कुछ प्राकृतिक ही था, केमिकलाइज नहीं हुआ था कुछ भी। और अजरक फिर उसी कपड़े में ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, ग्रह नक्षत्र, तारे वगैरह, तो वही कपड़ा अजरक प्रिंट कहलाया। और वो रजिस्ट होता है सारा सब कुछ, फाइन रजिस्ट होता है, मोटा रजिस्ट भी होता है, जैसे दाबू प्रिंट होता है उसी प्रकार से अजरक में बहुत बारीकी से रजिस्ट का काम होता है। और आजकल मॉडर्न फैशन में भी अजरक यूज़ हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा आयत या में कम? जी हाँ, बहुत आयत में यूज हो रहा है। अब अजरक प्रोसेस रह गया, अजरक लुकिंग रह गया, नील की डीप ही होती है, वही अजरक कहलाता है। और आजकल के डिज़ाइनर उसको बहुत अच्छे डिज़ाइन बना के बाज़ार में पेश करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। Superb, I would amazing. like to put in here something which is very important. Ajrak, the block print process is a very tedious process. Oh, it is. You have to process the cloth 16 times. This is a 16-step process. It was much more earlier. So you can imagine when you see a piece of cloth that they do is a lot of hard work, lots and lots of hard work, and it's not easy. So they are specialized artisans, and that's the reason that my label, and I'm not working on Ajrak, I'm working on hand-woven Bengal cottons. And as you saw from the collection, I've taken my label internationally. It has been launched over there by an American, and we are trying to promote Ajrak as an international clothing. That is fabulous. You know, we have been talking about promoting artisans, craftsmanship and stuff like that. And I feel in our country we are so rich in all of this, but I think it's dying down and we need to promote this. And what better platform than what we are doing right now. And it's so inspiring when designers like you are using such amazing work and carrying it on further to UK, USA, as your profile says. It's like a extra push that we all need to do, and it's so nice to see this work getting carried on further because we need this extra push. Yeah, it's very important, and sadly, if you can see, there's a parallel market which is growing for every block print. Yes. So there's screen prints. So, and he will tell you much better that how it has affected his industry and how much different it is from a real block print fabric to a screen print fabric. There's a huge difference. Wow. But what happens is that it's not affordable by everybody. Everybody wants quick fashion. Yes. It takes a long time to do a piece of cloth. And you can only do, I'm sure he would know better than me, you can only do 8 to 9 meters on a table of a Ajrak fabric. Wow. You can't do more than that. So you can imagine every time you see a piece of cloth being made, it has been cut from 8 or 9 meters only. Wow. सर मैम कह रही है कि ये अजरक जो प्रिंट है उसका प्रोसेस काफ़ी भारी है, वो ऐसे ही नहीं हो जाता है, पूरा उसका प्रोसेस है 10 बार 12 बार। जी, बहुत लंबा प्रोसेस है अजरक का। हर कोई प्रिंटर अजरक प्रिंट नहीं कर सकता। अजरक ग्रे कपड़े को ऊँट का गोबर और जांपा तेल बहुत खारा होता है और उसके साथ क्रिया करके भिगोया जाता है, जो कोरे कपड़े पे ही 6-7 दिन का प्रोसेस होता है एक्चुअली। उसके बाद चूना और बबुल का गोंद इसके साथ छापा जाता है, वो रजिस्ट्री होता है। उसके बाद लोहे का जंग उसको छापा जाता है जिससे काला कलर आता है। उसके बाद मुल्तानी मिट्टी, धावड़ी गोंद और कई सारी चीज़ें हैं जैसे मुलठी है, सौंफ है, इन चीज़ों को मिला के गोंद वगैरह से उसको फिर रजिस्ट किया जाता है। उसमें यदि मजीट से रंगे तभी मैरून रस्ट कलर आता है और अलीजरीन आजकल बाज़ार में मिलता है, उससे रंगे तभी मैरून कलर आता है। और नील भी कई प्रकार की मार्केट में है, प्राकृतिक नील भी है, कृत्रिम भी है, वेट भी है, तो जिसमें भी अपन जैसा बनाना चाहें, जैसा बेचना चाहें वैसा बन सकता है, वैसी डाई अवेलेबल है। सो अजरक प्रिंटिंग सीखने में मुश्किल है या आसान है? काफ़ी मुश्किल है
ओके सीखने के बाद सब कुछ आसान है, लेकिन सीखना थोड़ा जटिल है। अच्छा बहुत अच्छा प्रोसेस है। और पारंपरिक रूप से जो अजरक का काम यदि आज भी कोई करे सीखे तो उसको कभी स्किन से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। इतने प्राकृतिक तत्व सारे अच्छे चीज़ें लगती है, जैसे शरीर को शारीरिक रूप से हर प्रकार से फायदा ही है। वातावरण वायुमंडल को फायदा तो है ही है, और हर प्रकार से फायदा ही है। तो यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिज़ाइन में अभी डिज़ाइन में स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर उनको कोऑपरेट करना है अजरक, तो उनको पूरा सीखना पड़ेगा, या आर्टिस्ट है जहाँ वो कपड़ा दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये करो, या सीखना ज़रूरत है डिज़ाइनर के हिसाब से? प्रोसेस को समझना ज़रूरी है, ताकि उस प्रोसेस को समझें ये कैसे प्रिंट होते हैं, कैसे टिपिकल डिज़ाइन हैं। वैसे डिज़ाइन तय करके यदि बनाए जाएं तो प्रिंटर तो अवेलेबल हैं, ज़्यादा नहीं है, बट जितने बाज़ार में चाहिए उसके अनुरूप कम है, लेकिन डिमांड है, तो वो डिज़ाइनर बताए उसके अनुसार काम हो सकता है, होता भी है। Superb, great. So Thank you, sir. Sunita, tell me, you design for the royal family. So when you're designing bridal lehengas or generally ensembles for royalty, what is so different than designing it for regular people? Is there specifications? I'm not the main person to speak about it, but yes, I can. Is that firstly, when a Rajput wears a poshak, they will wear the traditional attire. It doesn't change. The design, the pattern, the embroidery design might change, but the way they wear it will be exactly the same. There'll be no different kind of a paneling. They'll wear a 12-panel lehenga, they'll wear a kurti, they'll wear a kanchli, they'll wear a orna with it, and their head will always be covered. So these are traditions that they have maintained. The designs that they use, even those are very traditional. So keeping the essence of their heritage, they have kept it going. So that is the entire story. When we talk about Ajrak, when you're talking about any royal costumes, so what has kept it alive? Why is it moving? Why it is so passionate about? We see movies like Padmavati, where people are fascinated what Deepika Padukone is wearing, and they come to our store and they say, we want to wear a poshak. Previously, only there were the Rajputs who used to wear the poshak for a wedding. But now we have been doing poshaks for so many other communities because it's so fascinating, it's so traditional, so rich, and it's got so much of grace and elegance. So I think that is very important, any clothing. So if you saw my collection, that we have combined the traditional Ajrak prints. As Mr. Khatri would know, there were only 4 prints that survived in Ajrak. It's a 4,000-year-old textile block print tradition, and you can see the remains of it from Mohenjo-daro and Harappa civilization. This is the oldest technique form of block print in the civilization. I think it is really amazing, and people like Mr. Khatri, is that what we want to put forward. And my initiative on Ajrak is that not only doing in India, now we see so many other brands promoting Ajrak. So I am trying to take it to the international market. It's there on their website, the company which is associated with us, and they have done a write-up on Ajrak about it. So if somebody is buying an Ajrak cloth, they must know the history that of it is a very difficult process, I've and that learned the clothing something new. that you're wearing, it was not done easily. So you see, when you see an embroidery, you can make out the embroidery, but when you see a print, you really don't know what really goes into it. So my idea in my store and outside is to educate people, so that people should know that it is not so easy, and we must appreciate the heritage that we have got. So that's very important. That's glad to know, because even I'm like learning something new that I've never heard before. We read stuff and we don't go into detailing. Yeah, so in my store, if you come, so we have this write-up on Ajrak on the board. So when I started 5 years ago, so I had people coming to my store, so what is Ajrak? So I would explain them, this is the process. If I'm there in the store, I want to educate my client. They should know if they're buying a kurta from me. So what has gone behind making it, All the time you talk about the designers, the style, but we need to talk about the artisans. I think that is so very important, and that is the initiative. If each and every designer adopts any one artisan or art craft, you can imagine how beautiful and rich our design ideology would be. Absolutely. Yeah. That's so true. Sir, government से आपको support मिल रही है? जी हाँ, गवर्नमेंट की कुछ संस्थाएं हमसे सामान खरीदती हैं, उनके कुछ स्टोर भी हैं, उनका सपोर्ट तो है ही। अभी बाड़मेर ज़िले के लिए अजरक डेवलपमेंट क्लस्टर की राज्य सरकार ने घोषणा की है, उस पे काम आगे आने वाले समय में शुरू होगा।
सुपर, क्योंकि कैंडिस और मैं दोनों फैशन इंडस्ट्री से है। जी, जी। तो हमारे जब फैशन वीक्स रहते हैं या हम फैशन शोकेस करते हैं, जी। तो एटलीस्ट लास्ट 1-2 साल में टेक्सटाइल्स, जो पुराना हमारा टेक्सटाइल्स है, वीवर्स है, अजरक है, इतने सारे हैं, जी। सब ट्राई कर रहे हैं उसको वापस लाने को, जी। उसको रिवाइव करने को। जी, जी। लेकिन ये टास्क इतना आसान नहीं है। जी हाँ। क्योंकि हम ज़्यादातर वेस्टर्न साइड पे जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा टेक्सटाइल जो है, हमारा हेरिटेज जो है, हमारा ट्रेडिशन जो है, जी। वो बढ़ सकता है? जी हाँ, बहुत संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं। मैं पिछले काफ़ी समय से यही रिसर्च कर रहा हूँ, यही पता लगा रहा हूँ कि अपने यहाँ भारत में एक परंपरा थी कि अलग अलग जातियाँ अलग अलग उम्र में अलग अलग कपड़े के डिजाइन्स, रंग पहनते थे। जी। उन सब डिज़ाइनों का पता लगाया, उनके पुराने कपड़े या पुराने ब्लॉक्स छापे मैंने ख़रीदे हैं, बहुत जगह से पता लगाया, उन सब की व्यवस्था की है, उनको नए दोबारा बनवाया है, उससे कपड़ा छाप भी रहे हैं। रिवाइव करने का हर संभव प्रयास चल ही रहा है और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आप लोग चाहेंगे कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, जिनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ पिछले 20-25 सालों में, वो वापस देखने को मिले। बिल्कुल संभव है, बिल्कुल वो चीज़ें बन सकती है, बन भी रही है, बस मेहनत लगन की ज़रूरत है। नहीं सर, अगर आप लोग रहेंगे तो हम डेफिनेटली सपोर्ट जी, करेंगे। बिल्कुल शुक्रिया। बहुत। जी जी जी। I would like to just add on one more thing is that what you were saying about Ajrak, जो इतना natural है, आपकी skin को harm नहीं करता. That is one of the reasons that my clothing went to the offshores. They are so conscious about the environment as we are also. Are they? But they are extremely conscious, especially in Hawaii. They want to save the oceans. As you know, the coral reefs are dying out. So it's very sad. So what we wear is being thrown out in the oceans. Yes. So we need to know, what are we wearing? Are we wearing cottons? Are we wearing synthetics? If we're wearing synthetics, it is damaging our environment. So we have to be more conscious. Sustainable fashion is the requirement of the time. And Ajrak is one such. Yes, and the reason that they have adopted over there is because it's all natural colors. Wow. It won't harm their skin. And we are taking a step forward for the next collection. It's all going to be organic cotton for the next collection. Brilliant. And they all will be GOAT certified. So that is the way, that they're willing to pay the price. See, that's another thing in our country is that we don't want to pay the price. I did a talk show and I talked about handmade is the ultimate luxury. It is a luxury to wear cotton. It is luxury to wear something handmade. It is luxury to wear by a clothing done by a master craftsman. Their craft would die out, we won't support. Yes. So I think we should be full of applause and we should promote more and more all the fashion shows and the designers. Absolutely. Talk more about it and make it like a huge movement. Absolutely. So once it becomes a movement, I think no time will be theirs. They have to see days where there's no work for them. That's true. That's the reason why I think since the last season, every fashion week has been, there's been awareness of sustainability and organic textiles. Everything is coming back in because we need to promote something that our country is rich in. And it's so glad that you're expressing it so beautifully. I wish this awareness is at every place that we travel to. It started with Jaipur. I hope they do it in different other parts of our country because we need to support something like that. And you said it so beautifully that it's amazing that you just read what we were actually thinking of earlier. So it's like very well put. Thank you, Sunitha. Thank you. Thank you. So guys, anyone would like to ask questions here? Yes, aap पूछिए. Ma'am and sir, all of you have not put on Ajrak. Ajrak, Kash, pata chalta, they should have got us something, no? I am wearing Ajrak sari. She is wearing. And this has been made by him. So he didn't know that because when I was going to the US, so I wanted to represent my country in US. तो मैंने इनके बेटों को बोला कि मुझे आप एक अच्छी सी साड़ी भेजिए, मुझे 4 दिन में निकलना है. And so he sent me the sari and I adorned it with whatever I needed to do with the trimmings. और इसको पहन के जब वहाँ गई तो हर आदमी इतना ज़्यादा वाव था कि आपने इतना ब्यूटीफुल गारमेंट पहना है. तो जो मैंने पहना है वो कॉम्बिनेशन, इसमें टाई डाई भी है, अजरक भी है,
सब कुछ इसमें अडॉन्ड है और इन्हीं का पीस है। तो इन्हें पता नहीं था, जब जैसे ही मैं यहाँ इनसे मिली तो इन्होंने पहला बात मुझे ये कही कि आपने तो मेरा पीस पहन रखा है। सो जो आर्टिजन होता है, अपनी जो क्राफ्ट होता है, अपनी जो चीज़ होती है, वो उसको कभी नहीं भूलता। मतलब चाहे 100, जैसे बोलते हैं ना, माँ अपने 100 बच्चों में से भी अपने बच्चे को, गाय अपने बच्चे को निकाल लेती है, वैसे ही इन्होंने जैसे ही मुझे देखा, इन्हें पता भी नहीं था, बिकॉज मेरा इंटरेक्शन इनके बेटे के साथ होता है। और मुझे लगता है कि जिस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं, माने मेरे वार्डरोब में मैक्सिमम यदि कुर्तेज़ हैं तो वो अजरक के ही हैं। और अजरक का एक और प्लस पॉइंट ये है कि जब आप पूरे दिन ट्रैवल कर रहे हैं, एक इसका डार्क कलर होता है, इसका आप पहन लीजिए, क्रश नहीं होगा, आराम से आप 2-3 बार पहन लीजिए। तो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो 3-4 कुर्ते भी डाल लिए तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। इट्स वेरी कंफर्टेबल क्लोथिंग। तो इस कपड़े की इस जानकारी जितना जितना हम लोग जानेंगे, यदि हम हर आदमी सोचे कि एक हैंडक्राफ्ट कपड़ा हमें खरीदना है, यदि हम ये आज ही सोच लें भी वाओ टू बाय वन हैंडक्राफ्टेड मटेरियल, क्योंकि स्क्रीन प्रिंट बहुत ज़्यादा आ गया है, पावर लूम आ गया है, तो हमें हैंड वोवन, हैंड क्राफ्टेड हमारे आर्टिजन्स को सपोर्ट करना है, हमें अपने कल्चर को आगे बढ़ाना है। और हमारी भारत की जो संस्कृति है, जो इतनी रिच है, उसे हमें उस धरोहर को यूएस के शोज़, बाहर के शोज़ से तो लेके जाना ही है, पर अपने देश में भी फैलाना है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। ट्रेडिशनल अजरक देखने के लिए यहाँ उपलब्ध है, शिल्पग्राम जो जवाहर कला केंद्र में पीछे प्रदर्शनी लगी हुई है, वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पे है जी हाँ। अजरक की एक और खूबसूरती है, जो जिनके ये मास्टर हैं, अजरक जो आपने देखा है वो 1 साइड नहीं 2 साइड होता है। जो मास्टर अजरक पीस होता है उसमें दोनों साइड में प्रिंटिंग प्रोसेस होता है, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी टीडियस प्रोसेस, एंड ही एक्सेल्स इन डूइंग एक्सक्लूसिव बेडशीट्स एंड स्टोल्स। जिस चीज़ स्टोल्स जो है, जब आप पहनते हैं तो दोनों तरफ से दिखता है, क्योंकि जब आप कपड़ा बनाते हैं तो पीछे से नहीं दिखता है, तो उसमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर जब आप स्टोल्स बनाते हैं, दुपट्टास बनाते हैं, तो आपकी खासियत है कि आप उसको बोथ साइड प्रिंट करते हैं। तो बहुत लोग ये नहीं जानते, एक्चुअल जो अजरक फैब्रिक था, वो जो बड़े लोग होते थे, जो रॉयल लोग होते थे, उनको ऑनर करने के लिए वो कपड़ा दिया जाता था। यदि किसी ने अजरक का टर्बन पहन रखा है, इसका मतलब वो बहुत ही ऑनर्ड है। तो इट वॉज अ पीस ऑफ क्लॉथ विच वॉज टू बी ऑनर्ड। तो हमें इस कपड़े की मतलब इतनी ज़्यादा इज्जत है, और जो करने वाले हैं मैं तो उनको सलाम करती हूँ, एंड आई एम privileged and I'm honored that as a designer that I can take it forward. That's so beautiful. एंड सर आप कह रहे थे कि अजरक का काम चल रहा है यहाँ पे एग्जीबिशन के एरिया में। जी हाँ। तो अगर किसी को देखना है, इट्स हैपनिंग इन द एग्जीबिशन एरिया, आई थिंक इट बी ग्रेट टू सी इट। मे बी वी शुड। तैयार कपड़े उपलब्ध हैं जी, जी। ओ तैयार कपड़े उपलब्ध है, जी। वो प्रोसेस नहीं दिखा रहे हैं। प्रोसेस नहीं, यहाँ अच्छा ठीक है, वो भी प्रोसेस के कुछ पीस हैं हमारे पास कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, वेरी गुड। नॉर्मली कितना वक्त लगता है एक लाइक कुछ लाइक हाउ डू यू से टू मेक इट इन अ पीस? एक एक्चुअली कम से कम 40 दिन का प्रोसेस है। वाओ, 40 दिन कम से कम। यदि जी हाँ, उसकी खूबसूरती 40 दिन में ही आती है, क्योंकि मिट्टी, चूना, जो चीज़ें, सब चीज़ें खारी होती है, वो कपड़े पे कुदरती रूप से फीकी पड़ जाए, नम पड़ जाए, उनके जो स्वभाव है स्वतः खत्म हो जाए, तभी उसकी लुक आता है। चूना ऑटोमेटिकली सफ़ेद होता है। Our tradition is just brilliant. जी। It is just लागत तो सर अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग लागत है। एक साधारण स्टॉल, एक स्क्वायर मीटर कपड़ा हैंडमेड कम से कम 200 रुपये में पड़ता है। जी साहब बनाते हैं, बिकता है। आम आदमी सदियों से अजरक थोड़े उच्च वर्ग के लिए ही बनता रहा है। जी 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 हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सम्मान की दृष्टि आजकल जो उपयोग हो रहा है अजरक, मूल अजरक का, वो सम्मान के लिए ही, जैसे अपन यहाँ समथिंग पश्मीना शॉल के टाइप अजरक है। जी हाँ, जी हाँ। शॉल के लिए ही आजकल, ओढ़ाने के लिए ही, पहले भी काम आता था, आजकल भी आ रहा है। एक तरफ छपा हुआ आमतौर पे सस्ता पड़ता है, और जी हाँ, उसकी लागत कम होती है। और वर्तमान परिदृश्य में एक तरफ कपड़ा छपा हुआ है वही पर्याप्त होता है, दोनों तरफ की कोई मान ही नहीं है उसका। जी जी जी। superb. Anybody else? Any questions? Yes, sir. Then the girl after that. जी। Yeah. Thank you. Thank you.
See, it's how you innovate. That's the whole idea. That's where the design aspect comes in. जब हम लोग किसी फैब्रिक को देखते हैं, किसी प्रिंट को देखते हैं, that's the way I design. So you have to see how that pattern will fall on a garment. Will it look nice on a shirt, on a dress, or a kurta? So that kind of creative ability takes you forward. आप किसी भी फैब्रिक को लेते हैं, जैसे हम लोग we are doing मुगल prints, we are doing hand woven Bengal cotton. हमने उसमें वुमेंस वेयर बनाया है, मेंस वेयर बनाया है, और हमने यूएस में सारा लेबल बना के वहाँ पे अच्छे से वहाँ पे लॉन्च किया है. और जो फीडबैक हमें हमारे वहाँ के बायर से मिला, दे हैड लव द क्लोथिंग. वी हैव मेड फ्लैट पैंट्स, वी हैव मेड शर्ट्स फॉर मेन. तो ऐसा नहीं है कि डिपेंड करता है कौन सा फैब्रिक है, यदि आप कौन से क्लाइमेट में रह रहे हैं. यदि आप हॉट क्लाइमेट में तो आप कॉटन को आराम से काम में ले सकते हैं. सो दीज आर मेनी फैक्टर्स दैट वी टेक इन टू कंसिडरेशन ऑन कंस्ट्रक्टिंग अ गारमेंट. So I hope I am getting a question right, or yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah. So that's the criteria. So when my buyer is going to take clothes for me, it has to have a natural dyed certification. It has to be goats free, and that also. बिल्कुल हो रहा है. आप यदि इनसे एक फैब्रिक लेंगे, यहाँ पे एक लैब टेस्ट होता है. आप उस क्लॉथ को वहाँ लेके जाइए, वहाँ पे लैब टेस्ट कराइए. उसका एक सर्टेन परसेंटेज होता है. यदि आपका क्लॉथ जो है वो 94 to 95% तक प्योरिटी दिखाता है नेचुरल कलर्स का, it is permissible to be exported and they will accept it as a natural dyed fabric. Because हर कंट्री का, हर बायर का अपना मार्केट है. कुछ लोग हैं जो सस्टेनेबल फैशन को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हाई फैशन को प्रमोट कर रहे हैं. पर अमेरिका में भी ये कॉन्शियसनेस आ रहा है, अदर कंट्रीज़ में भी पीपल आर गेटिंग अवेयर. हवाई जो है वो एक आइलैंड, एक बहुत छोटा सा आइलैंड है, बट आई वॉज वेरी टच्ड व्हेन आई वॉज देयर दैट पीपल वर सो कॉन्शियस. वहाँ पे आपने देखा होगा हवाईन शर्ट्स आर द मोस्ट फेमस शर्ट्स इन द वर्ल्ड. So for me, taking ajrak over there was very nice for the buyer because it's like a look-alike. Yet at the same time, it's cotton and it's natural dye. And it is a message towards saving our environment, towards the ocean. तो इसके बारे में बात करना ज़रूरी है. We need to talk about it. बिल्कुल है, बिल्कुल है. आपको जितना भी ऑर्गेनिक फैब्रिक जो है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है. I would say a huge amount of organic fabric is being produced in India and exported. And I'm proud that we are born in a country जहाँ से मैं hand woven cottons लेती हूँ. He is one of the companies who is exporting to the big companies in Europe and Japan. तो जापान यदि कोई क्लॉथ यूज़ कर रहा है, उसकी क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए, तभी वो उसको यूज़ कर सकता है. तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स है बहुत हाई है. देखिए इंडिया में हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, बट वी हैव टू पे द प्राइस. जो बात उठती है, जब क्वेश्चन मार्क आता है, वो प्राइस पे आता है. बिकॉज वी वॉन्ट टू बाय अ गुड थिंग बट वी नॉट विलिंग टू पे द प्राइस. आई डोंट थिंक इट वर्क्स लाइक दैट. यू हैव टू पे अ प्राइस. मैंने मुझे तो सुन के भी इनसे ऐसा लगा कि 40 दिन का कपड़ा बना के और 200 रुपया, इज दैट द वर्थ? मीन्स इट्स रियली वेरी सैड, आई वुड से. मीन्स वी नीड टू पे मोर. वी नीड टू पे मोर टू आवर आर्टिजन्स. देखिए सीधा सा, यदि आप कोई भी एक कॉटन फैब्रिक यदि 100 मीटर एक रेगुलर यदि होता है तो उसमें आप, हाँ मैं ये बता रही हूँ, यदि 100 मीटर एक रेगुलर कॉटन कपड़ा होगा, यदि वो ऑर्गेनिक होगा, तो उसमें आप कम से कम 60 to 70% आप और ऐड कर दीजिए. ईजिली 60-70% उसमें ऐड कर दीजिए, तो 160-170 रुपीज़ पर मीटर डायरेक्टली उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा. तो उसका सीधी इकोनॉमिक्स ये है कि आप 60 to 70% इंक्रीज़ आप ये मान लीजिए कि फैब्रिक में आएगा यदि वो ऑर्गेनिक है. अब रही बात कि हम कैसे पहुँचें, जो आर्टिजन्स हैं उन तक हम कैसे उनका वैल्यू मिले, बात यही हो रही है. क्योंकि हमेशा से क्या हुआ, सप्रेशन हुआ है. वी सप्रेस द लोअर द आर्टिजन्स, यू नो, एंड वी ट्राइंग टू, सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. जो हमारी कंपनी से टाई अप हुई है, सो आई वुड लव टू शेयर दिस विथ यू. सो आवर कॉज वुड बी कि वहाँ पे जो भी सेल्स होगा, उसके जो प्रॉफिट्स होंगे, उसका सर्टेन परसेंटेज वो वापस हमको देंगे. और जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनको जो रिक्वायर्ड है, यदि उनको पानी की ज़रूरत है तो हम उनको पानी की फैसिलिटी देंगे.
तो ये हम काम कर रहे हैं, जो मेरा कोलैबोरेशन हुआ है अमेरिकन कंपनी के साथ में, जो एक एंटरप्रेन्योर है, उसका ये इनिशिएटिव है कि हम जो भी काम करेंगे उसकी जो अर्निंग्स होगी हम अपने आर्टिजन्स को, उनके विलेज को, उनकी फैमिली को जो रिक्वायरमेंट है हम उनको देंगे। मेरी मनोज जी से फ़ोन पे बात हुई थी जब मैं अमेरिका जाने वाली थी। मैंने मनोज जी को यही क्वेश्चन पुटअप किया कि मनोज जी आप मुझे बताइएगा कि आपके विलेज में किस चीज़ की आवश्यकता है, उस चीज़ को फोकस करके, क्योंकि देखिए वहाँ के लोग क्या होता है बहुत टारगेटेड होते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि उनका जो पैसा जा रहा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहीं हम मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, कहीं गलत हैंड्स पे तो नहीं जा रहा है। ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, तो इसको पर वी एज जेन्युइन पीपल वी शुड टेक इट फॉरवर्ड। और मैंने एक और ट्रस्ट खोला है अभी, सो एट दिस पॉइंट आई वुड ऐड मोर टू दिस। आई रिसेंटली ओपन अ ट्रस्ट, अ फाउंडेशन। आप देखिए अजरक जब कपड़ा बनाते हैं तो हर डिज़ाइनर के पास में बहुत सारा फैब्रिक बचता है साइड से, हम लोग उसका एक स्क्रैप भी फेंकते नहीं हैं। जितना उसका फैब्रिक है वो हमने रखा है, उसको हम अपसाइकिल करेंगे। तो जो फाउंडेशन हमने खोला है, जो हमारे फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, लाइक आई वांट टू अडॉप्ट द डेफ एंड डम गर्ल्स एंड बॉयज़, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेन करेंगे, एम्ब्रॉयड्रीज़ में, हैंड क्राफ्ट में, अलग अलग काम करें, मेक देम एबल टू हैव अ इंडिपेंडेंट लिविंग। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बट आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन इट। कि हम कितने लोग हैं कि चाहते हैं कि बाड़मेर में जाके देखें आर्टिज़न क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। खत्री जी बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। वेरी सैडली अजरक का पैरेलल इतना ह्यूज स्क्रीन प्रिंट का मार्केट डेवलप हो गया है, तो जनरल आदमी को ये नहीं पता होता कि अजरक ये ओरिजिनल है कि स्क्रीन प्रिंट है। जिसको नॉलेज है वो बता सकता है, जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए वो भी अजरक है। तो मेरे स्टोर में जब कोई आता है बोलता है आपका तो कपड़ा बहुत महंगा है, वहाँ तो बहुत सस्ता मिल रहा था, तो उसको पहले ये समझाना पड़ता है कि वो स्क्रीन प्रिंट है। आपका कुर्ता क्या आड़े में कटा हुआ है? आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल डू ऑल नो कि व्हेन यू कट अ क्लॉथ इट्स इन द वेफ्ट एंड द वीव, उसको यदि आप लेंथ वाइज में कट करते हैं तभी उसका फॉल एंड ड्रेप आता है। यदि आपने उसको आड़े में काट दिया उसका ड्रेप नहीं आएगा और उसकी प्राइस कॉस्ट कट हो जाती है। सो दैट्स व्हाट ऑल द बिग ब्रांड्स आर डूइंग। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दैट। सो व्हेन यू गो टू बिग स्टोर्स, उनके जितने क्लोथिंग होते हैं वो आड़े में होते हैं, तो हमारी कॉस्ट से उनके कॉस्ट में बहुत फ़र्क होता है। तो बट दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस टॉक शो। आई थिंक वी नीड टू बी मोर aware. I don't know how many people touch these points, but these are very very important points. खत्री जी यहाँ बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे खत्री जी लोग ऐसे सिंपोजियम में बैठने चाहिए जिन्हें उनका राइट रिस्पेक्ट, उनको लाइमलाइट। वी आर नॉट देयर टू टेक लाइमलाइट, वी वांट टू ब्रिंग देम इनटू लाइमलाइट। हम लोग देखिए यदि वो काम करेंगे, यदि हम उसका कुछ नहीं बनाएंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। सो वी ऑल आर चैनल्स, हम लोग सब एक एक कंपार्टमेंट्स हैं टू द एंड प्रोडक्ट। पर लेकिन जो मेन काम है वो आर्टिज़न का है। हम आर्टिज़न को प्रमोट करना चाहते हैं, आर्टिज़न को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब भी कोई कपड़ा खरीदे तो उसकी हिस्ट्री को ज़रूर जानिए। यदि आपने ब्लॉक प्रिंट खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, वो कपड़ा कहाँ से बना है। आई थिंक एवरी स्टूडेंट शुड नो दैट। इफ यू आर बाइंग, नो अबाउट योर क्लॉथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Your point was actually really valid, because since last year the fashion weeks that we are doing are promoting only artisans because they're not getting their due, and the reason why they're promoting them is because they are working so hard, and I truly know what exactly you're trying to, because they don't get their due. By the time it reaches the higher level, the amount of money that that particular person makes, the artisans get less than 1/4 of what they're supposed to be getting. So they're trying to support the artisans so that the profit goes directly to them, so that their family wants to work further, because the next generation doesn't want to work at the cost that they are living at, and it's so unfair. That's the reason why since last year we are promoting, they're promoting sustainable fashion, and they're promoting artisans so that they get their due and our culture lives as flourishing as it's supposed to be. Yes.
Anita Dongre. I think all designers are saying exactly this, in the last 2 days. Superb. And it's happening. It is happening. It is happening. Yes. Absolutely. Yes. But, sir, it's a part of the learning process. It will happen, it will be exposed. No, I actually want to give other people a chance because they are waiting to ask questions. So we can talk more about this once it's closed on stage. I can talk all evening. Yes. Of course, that's Of course, what I'm Sunita trying has to tell well you, said sir. everything. I'm trying to tell you, sir, that they are learning, they are hearing, and they are going in that direction. There's a lady over there who's been waiting very long to ask something. Please go ahead. मैंने आप क्या कहना चाहते कि जो हमारा कल्चर है क्या वो अभी भी जिंदा है? हम रक्स हाँ हाँ See, that is the whole movement, the awareness movement. आप यदि कोई भी इंस्टाग्राम हैंडल खोलेंगे तो you will see, I don't know, at least 50 handles which is talking about slow fashion, sustainable fashion, eco fashion. तो अब ये वर्ड्स जो हैं, अब ये कोई ऐसा नहीं कि वो नए वर्ड्स रह गए हैं. They are quite old. We need to educate ourselves. We need to keep our minds open. See, that's the whole point when we attend debates or symposiums or any talk shows. Your mind opens. You get a new learning. So every time there's a new learning. तो वो learning की ज़रूरत है. आपको conscious होने की ज़रूरत है कि मेरा मूल क्या है. You need to get your roots. I think it's as simple as that. Thank you, ma'am. That was amazing. Yes. Yes, ma'am. सर आप आंसर कर सकते हैं. पारंपरिक रूप से अजरख पुरुषों के लिए बनता था. लुंगी, गमछा और साफा. रॉयल पीपल तीन ही चीज़ें काम में लेते थे, साफा और गमछा, अंगोछा, स्कार्फ, कुछ भी कह सकते हैं, और लुंगी. सिंध और डेजर्ट ऑफ सिंध यानी जो मारवाड़ है, जोधपुर से पश्चिम दक्षिण पूर्व का, जोधपुर से सिंध की तरफ वाला एरिया. Thank you. Very good. Well That's done. good. Superb. That's brilliant. Superb. Keep it Superb. up. We all need to do more of that. Yes. We need to do more of that. Anyone else? There was someone here who wanted to ask, unless she's gone. There. Him. Yes. Super. Congratulations.
Brilliant, brilliant. No, she's got a valid point and she actually answered. And I was telling you that I'm not aspiring to be a fashion designer. I am a model by profession. But from morning that I've been mediating this conversation, there are ample amount of students over here who are ready to take our culture and our heritage forward. You can ask her, she's standing right She's there. behind you. Anyone else? Yeah, that sir wants to Sir? ask a question. Sir? Sir Mawsam. Oh wow. वो आप आंसर अजरक है वो सिर्फ कौन से क्षेत्र में, बिकॉज आई एम श्योर वो तो सिर्फ डेजर्ट के क्षेत्र में होता है, तो अजरक और कहीं बन सकता है, ये पूछना चाहिए। वैसे तो अजरक, स्पेशली अजरक के बारे में कहें तो सिंधु नदी के आसपास ही अजरक बनता था, और जैसे जैसे पानी जिस एरिया में उपलब्ध होता रहा वहाँ वहाँ रंगाई छपाई वहाँ ही संभव थी। जहाँ पे पानी की कमी थी वहाँ पे रंगाई छपाई संभव नहीं हो पाई। आमतौर पे नदियों के किनारे या जहाँ पानी बहुतायत में होता था वहीं रंगाई छपाई होती थी। नहीं, जहाँ पे मौसम नम है, जहाँ हवा में पानी है, वहाँ पे अजरक संभव नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, जी 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 बिल्कुल, जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ, जी बहुत अच्छी तरह पहचाना आपने। I know, that's brilliant. Very nice. Thank you for that. Thank you. Anyone else? Yes? So I don't know whether you saw the collection, the AV that was played initially. So अजरक के सिर्फ 4 ही प्रिंट पहले हुआ करते थे, जो खत्री जी आई थिंक वुड नो. देयर वर ओनली 4 प्रिंट डिज़ाइंस इन अजरक विच इज़ ट्रेडिशनली नोन एज अजरक. उसके बाद जितना कुछ आया है वो सब कुछ इनोवेशन है. और आपने देखा होगा कि जो कलेक्शन था उसमें ज्योमेट्रिक प्रिंट्स थे. So that appeals to the international market. They would not take something, they would not like to wear a shirt which has got a very traditional print because it would not suit their environment or they would not like to wear it. So I think Ajrak में बहुत ज़्यादा experiment हुआ है. You need to explore that market. Geometrics से बहुत बड़ा collection आया and I have worked very huge on it. I am very proud to say that मुझे 4 साल हुए अजरक में काम करते हुए and I have used 3,000 meters of अजरक till date. एंड लाइक खत्री जी जैसे हैं, आप यदि इनके वहाँ पे जाएंगे, आप अपने डिज़ाइंस देंगे, दे आर विलिंग टू वर्क, दे आर वर्किंग विद लॉट ऑफ इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स. देखिए क्या होता है, आर्टिजन के लिए आप सोचते कि वही काम कर रहा है, एक्चुअली वी डोंट नो. मेरी इनके बेटे से कई बार बात होती, इनका लेवल इतना हाई है, दे आर वेरी वेरी सटल पीपल. इनका अपने बहुत, ये लोग इसको कहते हैं कि डाउन टू अर्थ हैं. इनके अंदर में जो इनकी खूबी है और जो ये काम कर रहे हैं वो हमको पता भी नहीं है. इतने इंटरनेशनल बायर्स इनके पास में आते हैं, फॉरेनर ग्रुप्स आते हैं, इनके पास स्पेशलाइज्ड काम बनता है. इनके जो एक ग्रुप में डॉक्टर इस्माइल खत्री हैं जो भुज में अजरकपुर में, एवरीबडी नोज. सो उनका लंदन में इतना बड़ा शोकेस हुआ, ही इज़ बिन. तो ऐसा नहीं है, आर आर्टिजन्स आर द वंस हु आर डेवलपिंग इट. जितना नया इनोवेशन आ रहा है, जितने ज्योमेट्रिक्स आ रहे हैं, एज अ डिज़ाइनर आई एम श्योर यू विल पुट फॉरवर्ड, यू विल कम टू देम. बिकॉज देखिए इसमें एक बहुत टेक्निकल आस्पेक्ट है. कोई भी क्राफ्ट होता है उसका एक टेक्निकलिटी होती है, तो उसके टेक्निकल आस्पेक्ट को समझ के ही वो आपके डिज़ाइन को डेवलप कर सकते हैं. तो इस चीज़ को यदि ध्यान रखते हुए आप डिज़ाइन करेंगे, आई एम श्योर यू कैन कम टू अ मीटिंग पॉइंट एंड यू कैन क्रिएट योर ओन क्रिएशन एंड डू समथिंग वेरी ब्यूटिफुल.